Dear DVP students, welcome on my YouTube channel. Today, start a class of macroeconomics, unit 3rd, aggregate demand and its components. We read in last class what is aggregate demand and relation of aggregate demand and income, and two sector economy, three sector economy, four sector economy, etc. After this, aggregate supply and what is aggregate supply. We also read in last class AD equals to C plus I. It is two sector economy, and AS equals to C plus S. Okay. According to this equation, in the economy, what is break-even point? Help to AD and AS. It is first equilibrium point in the economy, and second equilibrium point I equals to S. Both are equilibrium point in the economy. Okay, help to diagram. We show in diagram AD equals to AS. O axis on show of always Y income, and OY on show of always AD and AS. Okay, AS curve is always started point to 0.45 degree linear. 45 degree linear. Y oblique AS. Okay. Second, AD curve. AD curve start always up point to 0, yeah, more than 0. Okay. AD and upward. AD and AS slope always positive slope. Okay. In the diagram, AD and AS curve is intersect that we call equilibrium point in the economy. Help to AD and AS curve. E point is show of break even point in the economy. On this point, AD curve and AS curve is equal. That is we call equilibrium point in the economy. That's clear. That is E point show of in the economy is first equilibrium point in the macroeconomics. Help to AD and AS curve. Okay, and second curve I equals to S. I equals to S. Break-even point in the economy. According to a diagram, X, Y, Y, and 0. Okay. I and S. We read in last class also now. Investment curve is always constant. Macroeconomics investment curve. Investment is two types: individual investment and autonomous investment. Individual investment always constant, and autonomous investment is always variable. Okay, so individual investment is constant curve I and horizontal to O axis. Okay, I curve, and second S curve. S curve is a start to below 0 and less than 0, because initial savings are equal to consumption, initial consumption, and when Y equals to 0, initial consumption equals to initial saving when Y equal to 0. Y equal to 0. So here saving curve is start to below 0 point and upward. Okay, I and S intersect to E point, then we call break even point in the economy. Help to investment and saving curve. Okay, complete. Today we start again
our chapter propensity to consumption या consumption function C equals to function of y. C equals to function of y. We also know y is independent variable, C is dependent variable, so C depend on y. When y increase, then automatically C will be increase. Okay, and y decrease, then effect on C consumption. Complete. It means that as income rise propensity, income will be increase, income will be increase. Okay. Income rise propensity to consume also rise, but by less than an increase in income. Propensity to consume refers to the schedule which show the level of consumption at different level of income. Propensity means different level of income. यानी इकोनॉमी में जो प्रोपेंसिटी होती है वो इनकम पे डिपेंड करती है मोस्टली, और इनकम के अकॉर्डिंग जो अटेंडेंस अपन जिसको बोलते हैं, जैसे स्टैटिक्स में अपन मोड पढ़ते हैं, बहुलक मोड, तो मोड जो अटेंडेंस होती है वो क्या होती है, जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी होती है वहाँ पे डिपेंड करती है, एज इट इज सेम टू सेम डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम. जो प्रोपेंसिटी है कंजप्शन फंक्शन है, जो कंजप्शन लेवल होता है ह्यूमन बॉडीज का, ह्यूमन पर्सनस का, सेविंग टेंडेंसी होती है, सारी किस पे डिपेंड करती हैं, डिपेंड ऑन इनकम. क्लियर. तो इनकम इंक्रीज, देन इफेक्ट ऑन कंजप्शन विल बी इंक्रीज, and a ratio between consumption and savings are income and depend on y. Okay, clear. Next, according to this schedule, y for income 0, 50, 100, 200, 300. Yeah, that is assumption schedule. Y for income or persons 0 increase to 50, 50 to 100, 100 to 200, 300. Okay. Next है consumption depend on y. When y 0, then consumption is 50, that means y equals to 0, then consumption is positive and saving is negative. सेविंग्स ऑलवेज क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, और कंजप्शन ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है. सपोज कीजिएगा कि आपके स्टूडेंट्स लाइफ है, आप स्टडी करते हो, तो आपका जो कंजप्शन है, जो एक्सपेंसेस हैं, उनका बर्डन किस पे जाता है, आपकी फैमिली पे. तो फैमिली पे आपका जो बर्डन, जो एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस हैं, सारे आपकी फैमिली उसको बर्डन कर रही है. तो ये क्या है, प्रेजेंट टाइम में आपका कंजप्शन, इट इज कंजप्शन इज पॉजिटिव बट सेविंग्स इज नेगेटिव. यानी आफ्टर एक एज के बाद में आपको अपनी फैमिली के जितने बर्डन्स हैं उनको आपको उनकी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप उनको फॉलो करोगे, तो इसलिए आपकी सेविंग्स क्या हो गई, नेगेटिव हो गई. ओके. तो सेविंग्स होती हैं ऑलवेज क्या होती है, व्हेन y इक्वल्स टू 0, देन सेविंग इज नेगेटिव एंड कंजप्शन इज पॉजिटिव. ओके. तो y 0, 50, 100, 200, 300 एंड कंजप्शन डिपेंड ऑन y. When y is 0, then consumption 50. Okay. Increase of income 0 to 100, then consumption 75. यानी इनकम में कितना चेंज हो रहा है, डेल y 0 to 50 कितना चेंज हुआ, 50. और कंजप्शन कितना चेंज हो रहा है, डेल c इक्वल्स टू 50 to 75 यानी 25. नेक्स्ट इनकम इंक्रीज 50 to 100, तो 50, एंड कंजप्शन 75 to 100, 25. क्लियर. अगेन
100 to 200 change, del y change in 100 and 100 to 150 तो 50, 200 300 change in 100 and 150 to 250. This table is show of change in del y, change in del y and change in del c. Consumption depend on y. Consumption is increase of increasing rate, and income is increase of increasing rate, then consumption is increase of constant rate, 25 25 50 50. Clear? Okay, next, types of propensity to consume. Propensity to consume refers to a schedule which show the level of consumption at a different level of income in an economy. It is a ratio between C and Y. C here, C for consumption and Y for income. Clear? Consumption at different level of income in an economy, it is ratio between C and Y. जो कंजप्शन जो फंक्शन है, प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन है, वो किसको शो कर रहा है, डिनोट कर रहा है यहाँ पे रेशियो बिटवीन सी एंड वाई. सी एंड वाई कंजप्शन लेवल एंड इनकम लेवल के रेशियो को शो कर रहा है. ओके, इट हैज टू एस्पेक्ट्स ऑफ टाइप्स. यहाँ पे जो कंजप्शन जो है इसके अपन टू एस्पेक्ट्स यहाँ पे अपन लर्न करते हैं. फर्स्ट जो है यहाँ पे एस्पेक्ट अपन लर्न करेंगे वो कौन सा होगा, एपीसी. एपीसी एवरेज propensity of consumption. एंड सेकेंड जो एस्पेक्ट होगा वो होगा एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन, एमपीसी. आज का जो वीडियो होगा अपना स्पेशली बट इन टू एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करता है. फर्स्ट है एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन एंड सेकेंड है एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन. इनके अकॉर्डिंग अपनी आज इसके वीडियो को इनको ठीक से समझते हैं. जो इसके टेबल्स हैं, डायग्राम्स हैं, वो ठीक से समझना. फर्स्ट एस्पेक्ट ए, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. एपीसी, it is the ratio of total consumption expenditure. Total consumption expenditure means C, and C to total income Y. Total income Y at a given level of income in the economy, or it is the ratio of consumption expenditure to the corresponding level of income. Ratio change in consumption and income depend on corresponding level of income. That means APC equals to C upon Y. That is formula of APC. APC equals to del C upon Y. C for C denote here consumption. Consumption and Y denote here income. According to last table, consumption and income. Okay, APC is show of ratio between change in consumption and income. Okay, help to this table. Level of income, second column C consumption, and third row C upon Y. C upon Y क्या होता है, APC equals to C upon Y. एवरेज प्रोपेंसिटी कंजप्शन है, इसको अपन टेबल और डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसे इसको डिनोट करते हैं वो इसमें लर्न करेंगे. आप इसका फाइनल एग्जाम्स में आपके इसमें छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस 1 मार्क्स 2 मार्क्स. ओके, फर्स्ट है लेवल ऑफ इनकम. इनकम 0 50 इंक्रीज टू 100 200 300 400. ओके, इनकम एंड कंजप्शन गिवन वैल्यूज होती हैं ऑलवेज.
इनकी हेल्प से अपन क्या फाइंड करते हैं, एपीसी फाइंड करते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सेकेंड है कंजप्शन, कंजप्शन 50, 50 टू 75, 75 टू 100, 100 टू 150, 1 200 एंड 250। क्लियर। नेक्स्ट कॉलम, we are find here value of APC. You also know APC formula, APC equals to C upon Y, C upon Y. That formula put here. Y first stage Y 0, then consumption 50. Okay. Next C upon Y, APC find value of APC. So 50 means 50 here value of consumption and 0 there Y. 50 upon 0 equals to infinite. 50 upon 0 equals to infinite. एपीसी वैल्यू मिनिमम जो वैल्यू एपीसी की कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। ओके, एमसी क्वेश्चंस आते हैं आपके, एपीसी मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू इनफाइनाइट, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 1, तो राइट वैल्यू इनफाइनाइट। क्लियर। सेकंड, इनकम चेंज 0 to 50, income change 0 to 50 and consumption will be increase, effect on income 50 to 75, change is 50 to 75, sorry, then find value of APC, APC C upon Y, C value is 75 and Y value is 50. Okay, so 75 upon 50 equals to 1.5, 1.5. Clear. Next, Y increase 50 to 100, then C increase 75 to 100. Find value of APC. So 100, C value is 100, Y value is 100. 100 upon 100 equals to 1. Value is 1. Clear. Again, 100 to 200, 100 to 150. 150 upon 200 equals to 0.75. Clear. 200, 300, 150, 200, 200 upon 300, 0.67, 0.67. 400, 250, 250 upon 300 equals to 0.62. That is value of APC, average propensity to consumption. इसमें आप देखो, इसमें एक रिलेशन शो कर रहा है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे एपीसी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एपीसी विल बी increase, then APC value is decrease. Clear. Okay, APC value here show of a relation. When Y 100 and C 100, then C equals to Y. That means when income is 100, then consumption 100, then C equals to Y. In the economy, all consumption are equals to all income. Okay, before this point, C greater than Y, C greater than Y, यानी इकोनॉमी में जो कंजप्शन का जो रेशियो होता है C equals to Y, that means equilibrium point. Before equilibrium point in the economy, consumption is high and income is low. After equilibrium point, C less than Y, yeah, Y greater than C. After equilibrium point, income is increase of increasing rate 200, 300, 400, but consumption increase 100, 150, 200, 250. So there, after equilibrium point in the economy, C less than Y. इंक्रीज है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, बट जो कंजप्शन लेवल है इकोनॉमी में वो जिस रेशियो से इनकम इंक्रीज होता है उस रेशियो से कंजप्शन लेवल इंक्रीज नहीं होता है। ओके, दैट इज शो ऑफ रेशियो बिटवीन कंजप्शन फंक्शन एंड इनकम। क्लियर। अकॉर्डिंग टू दिस टेबल ड्रॉ ए डायग्राम। X, Y and 0. O x shown always income,
y and OY on show of AD and AS। ये आपको जो इसमें फंक्शन आपको डायग्राम्स में डिनोट करने हैं उसको भी आप यहाँ राइट कर सकते हो। जैसे अपन को यहाँ पे सी एंड वाई डिनोट करना है तो अपन यहाँ पे सी ओब्लिक वाई भी राइट कर सकते हैं, सी ओब्लिक वाई। क्लियर? अगेन ओ एक्स शो ऑन वाई, वाई फॉर इनकम, वाई 0 50 0 50 100 50 200 300 400 500। Clear? Second, C for consumption. Consumption shown O Y X X 0 50 100 200 300 400 250। Clear? Y करो start to 0 point and 0.245 linear। Y करना है 45 degree। Clear? Second, consumption function start to 50 but not start to 0। In this diagram, consumption function is a start to more than 0 point. That means according to table 50 points and increase of increasing rate but below y। देखो यहाँ पे y है वो देखो इंक्रीजिंग ऑफ, यहाँ पे देखो 100 हो रहा है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे देखो कितना इंक्रीज हुआ 100 to 200, बट यहाँ पे कंजप्शन कितना इंक्रीज हो रहा है 100 to 150। ओनली डिफरेंस हियर 50 एंड देयर डिफरेंस इज 100 यूनिट्स 100। ओके, तो कंजप्शन फंक्शन इज इंक्रीज ऑफ इंक्रीज बट बिलो y, C function। okay, according to this diagram in the economy break even point C equals to y। तो डिफरेंसेस हैं आपको वो सेम मिलेंगे, आपको डायग्राम और टेबल दोनों में डिफरेंसेस सेम मिलेंगे। दैट मीन्स देखो यहाँ पे C इक्वल्स टू वाई इन द डायग्राम। क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस टेबल C इक्वल्स टू वाई कहाँ पे हो रहा है, C इक्वल्स टू वाई 100 अपॉन 100 इक्वल्स टू 1, C इक्वल्स टू वाई। देखो y कितना है यहाँ पे 100 एंड कंजप्शन कितना है 100। तो इन दोनों पॉइंट्स पे कौन कौन सी वैल्यू इक्वल हो रही है 100 to 100। दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन क्लियर हियर C equals to y in the diagram and table। okay, before equilibrium point C greater than y, C greater than y। देखिए यहाँ पे जो y की लाइन है, लाइन ऑफ y is below to C, line y below to C। that means in this point before C greater than y। क्लियर? कंजप्शन ज्यादा हो रहा है इकोनॉमी और जो इनकम लेवल है वो क्या है लो, बिलो टू कंजप्शन लेवल। आफ्टर इक्विलिब्रियम पॉइंट y ग्रेटर देन C। देखो आफ्टर इक्विलिब्रियम पॉइंट देखो इनकम के जो कर्व है वो क्या हो रहा है अपवर्ड हो रहा है। ओके, बट जो कंजप्शन जो कर्व है वो क्या है बिलो टू y। दैट मीन्स y ग्रेटर देन C in economy का after equilibrium point in the economy income will be increase high speed and consumption increase slow speed। that's clear? okay, so APC average propensity to consumption definition table and diagram and formula ये आपके इसके अकॉर्डिंग आपके क्लियर होना चाहिए सभी स्टूडेंट्स की। एज इट इज आपको डेफिनेशंस टेबल्स और डायग्राम आपको नोटबुक आपकी बुक है उसमें मिल जाएंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग आप इसके नोट्स बना लेना। नेक्स्ट अगेन properties features of APC। properties features of APC। first, APC equals to 1 at break even point, APC equals to 1। x y 0 income curve and consumption curve C। E point break even point, in this point table and diagram C equals to y। we also read just now C equals to y in last diagram, C equals to y, y and C oblique y। clear? C equals to y
according to table 100 income and 100 consumption. Clear? APC greater than 1 to the left of break-even point, APC greater than 1. In this point APC is 1. Before APC greater than 1, greater than 1. According to this table, APC equals to 1, APC equals to 1. Before APC greater than 1. First point, when y equals to 0, then consumption 50 upon 0 equals to infinite. That means APC greater than 1. Second, income is increased 0 to 50, then consumption 50 to 75, then 75 upon 50 equals to 1.5. Okay, so before equilibrium point always APC greater than 1, and after break-even point APC equals to 1. After break-even point APC always less than 1. Okay, APC greater than 1 when C greater than Y. Okay, just opposite condition, APC less than 1 to the right of break-even point, APC less than 1 when Y greater than 0. So on the equilibrium point C equals to Y. Before equilibrium point C greater than Y, and after equilibrium point Y greater than C, या APC less than 1. Clear? Next, APC falls with increase in income. APC is false increase income. According to table, income will be increased to increasing rate, and consumption increase to a constant level. Okay, तो APC falls होता है कब? जब इनकम इंक्रीज होता है हाई स्पीड से 100, 200, 300, 400. It is the because proportion of the income spent on the consumption keep on falling. People tend to saving more also. जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, tend to saving more also. Income 100, 200, 300, 400, 500. Then consumption decrease. तो आपका कंजप्शन सपोज कीजिए आपने यहाँ पे 300 आपकी इनकम है, आपने कंजप्शन कितना किया 250 कंजप्शन किया, तो आपकी सेविंग्स कितनी है, रिमेन सेविंग कितनी होगी 50 रुपीज. ओके, इनकम इंक्रीज 300 to 400, देन योर कंजप्शन इंक्रीज टू 300, तो आपकी सेविंग कितनी हो गई और 100. ओके, तो ये क्या होता है, पीपल्स टेंड टू सेविंग मोर आल्सो. यानी सेविंग जैसे जैसे इंक्रीज हो, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे कंजप्शन होता है, उसका रेशियो कम होता है, और जो सेविंग का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है. सपोज कीजिए आप फैमिली की इनकम 10,000 प्रेजेंट टाइम में है, तो आप अपनी फैमिली की नीड्स को 10,000 में कंप्लीट कर लेते हो. सपोज कीजिए कि आपकी फैमिली की इनकम 10,000 से डायरेक्ट 50,000 हो जाती है पर मंथ, तो क्या जो इंक्रीज है 40,000 रुपीज वो सारा कंजप्शन में यूज करते हैं या नहीं करते हैं. उसका जो जैसे 10,000 पहले कंजप्शन था उसे अपन इंक्रीज करके 25,000 करेंगे, तो बाकी जो रिमेन्स अमाउंट है अपनी फैमिली इनकम की 25,000 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पीपल्स टेंड टू सेव मोर आल्सो. यानी अपनी जो सेविंग्स है उसको अपन क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं इसके अंदर. ओके, क्लियर. फिफ्थ पॉइंट, एपीसी कैन नेवर बी जीरो. यानी एपीसी कैन नेवर बी जीरो, एपीसी कैन नेवर बी जीरो. ऑलवेज इसको अपन रिमाइंड रखना. क्वेश्चन आता है इसका कि एपीसी वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, बट एपीसी कभी भी क्या नहीं होता है, कैन नेवर बी जीरो. दिस इज द बिकॉज कंजप्शन इज नेवर जीरो. बिकॉज कंजप्शन इज नेवर जीरो, क्योंकि अपना जो सी है कंजप्शन वो कभी क्या नहीं होता, कभी जीरो नहीं होता है. ओके, इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम ऑटोनोमस कंजप्शन इज देयर. Zero level of income, suppose y equals to 0, then consumption always positive, consumption always positive according to table. When y equals to 0, then c equals to 50 according to table. Okay, that is clear APC part. Next
Second part, propensity to consumption. Second part, marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume, MPC. Marginal propensity to consume. It is the ratio of change in consumption. It is ratio of change in the consumption expenditure, del C. Del C. 2. Change in income, del Y. Change in income, del Y. Over a period of time, MPC change in consumption, del C change in Y. Formula here, MPC equals to del C upon del Y. Del C means change in income upon change in income, change in consumption and change in income. Clear? Formula of MPC equals to del C upon del Y. Del C is denote here change in consumption and del Y denote here change in income. Okay, but APC is C upon Y. Okay, average propensity consumption refers to the situation when change in income and change in effect on consumption, but MPC in change in income to effect on change in consumption. यानी जो मार्जिनल होता है इकोनॉमी में वो किसको डिनोट करता है? ऑलवेज चेंज को शो करता है. चेंज मीन्स डेल, डेल को शो करता है, और एवरेज होता है नॉर्मल स्पीड को शो करता है. क्लियर? तो एमपीसी इक्वल्स टू डेल सी अपॉन डेल वाई एंड एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई. दैट इज क्लियर. ओके, अगेन अकॉर्डिंग टू टेबल इनकम, फर्स्ट कॉलम वाई 0, 50, 100, 200, 300, 400. यानी ये एजम्पशन टेबल्स होती हैं. इकोनॉमिक्स में आप कोई भी टेबल ले सकते हो, उस टेबल के अकॉर्डिंग आप इस डायग्राम बना सकते हो, उसको आप टेबल के अकॉर्डिंग हेल्प बना सकते हो. जो भी आपकी डाटा है वो एक किसी बुक में आपको सेम मिलेंगे, उसका इफेक्ट सेम मिलेगा आपको. डाटा कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे 0 से यहाँ पे 75 हो सकता है, 200, 500 हो सकता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है ना. ओके, तो फर्स्ट कॉलम y 0, 50, 100, 200, 300, 400. क्लियर? सेकंड कंजप्शन 50, 75, 100, 150, 200 and 250. क्लियर? ओके, we now MPC equals to del C upon del Y. ओके, del C, डेल सी किससे फाइंड करेंगे? डेल सी फाइंड करेंगे अपन सी कंजप्शन फंक्शन से, और डेल वाई कहां से फाइंड करेंगे? वी फाइंड ऑफ वाई इनकम. ओके, वाई कॉलम वी फाइंड आउट ऑफ डेल वाई वैल्यू. डेल वाई फर्स्ट स्टेज 0, 0 से पहले से स्टेज इनिशियल स्टेज वो अपने पास अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ का डिफरेंसेस नहीं होगा. यहाँ पे किसको अपन किससे शो करते हैं? डॉट से शो करते हैं. क्लियर? सेकेंड चेंज इन वाई, चेंज इन वैल्यू कौन सी अपन को, कौन सी वैल्यू चाहिए अपन को? चेंज इन वाई, डेल वाई. तो 0 to 50 चेंज कितना हुआ? यहाँ पे 50 का चेंज हुआ. तो सेकंड 50 to 100, 50 चेंज हुआ. 100 to 200 चेंज इन 100, 2 से 300, 3 to 400. तो डेल वाई कॉलम हमने यहाँ पे फाइंड किया है. हेल्प टू इनकम. क्लियर? सेकंड डेल सी, डेल सी फाइंड डिपेंड ऑन सी, डेल सी डिपेंड ऑन सी. तो 50 when y equals to 0 then consumption is positive 50. तो 50 से पहले जो इनिशियल स्टेज अपने पास अवेलेबल नहीं है डाटा टेबल, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन? इसको क्या करेंगे? डॉट से डिनोट करेंगे. एमपीसी जो इनिशियल वैल्यू होती है ऑलवेज क्या होती है? डॉट से शो करते हैं. 50 to 75 चेंज 25, 75 to 100 चेंज 25, 100 to 150 चेंज 50, 150 to 200 50, 200 to 50 50. क्लियर? तो एमपीसी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या चाहिए अपन को? डेल सी अपॉन वाई, और दोनों वैल्यूज अपन ने क्या किया? टेबल में से अपन ने फाइंड किया. ओके, हेल्प टू दिस डाटा वी फाइंड वैल्यू ऑफ एमपीसी. एमपीसी वी आल्सो नाउ एमपीसी इक्वल्स टू डेल सी अपॉन डेल वाई. ओके, तो
dot dot. Again next value, find help to MPC formula. MPC value 25, to 25 upon 50 equals to 0.25. okay, again see 25 upon 50 equals to 0.5. okay, again 50 upon 100 equals to 0.5, again 50 upon 100 equals to 0.5, again 50 upon 100 equals to 0.5. once again repeat these values. ओके, मार्जिनल जो वैल्यूज अपन को मैक्रो इकोनॉमिक्स में फाइंड करते हैं तो उनके लिए अपन को क्या चाहिए, अपन को चेंज फाइंड करना है। अपन को क्या फाइंड करेंगे, अपन चेंज फाइंड करेंगे। और चेंज फाइंड करने के लिए जो पर्टिकुलर जो आपके पास वैल्यूज टेबल दी हुई है, जिसकी वैल्यू दी हुई है आपके पास, जैसे इनकम है, कंजप्शन है, सेविंग्स है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसी कॉलम से आपको उसका चेंज निकालना है, चेंज वैल्यूज आपको निकालनी है वहां से। जैसे आपको सपोज कीजिएगा आपको ये डेल सी अपॉन डेल वाई, तो अपन को फर्स्ट वैल्यू क्या होनी है, आपके पास टेबल में अवेलेबल होनी चाहिए वाई एंड सी, वाई एंड सी। तो डेल वाई किससे अपन फाइंड करेंगे, वाई से, एंड डेल सी कहां से फाइंड करेंगे, अपन कंजप्शन कॉलम से फाइंड करेंगे। क्लियर। तो ये डेल सी की वैल्यू अपन ने कहां से फाइंड की, वाई से फाइंड की, और डेल सी की वैल्यू कहां से फाइंड की, अपन ने सी से फाइंड की। क्लियर। अगेन एमपीसी का फॉर्मूला आप इसमें पुट करते हैं, और एमपीसी फॉर्मूला होता है डेल सी अपॉन डेल वाई, यू आल्सो नो। तो डेल सी अपॉन डेल वाई की वैल्यू जो अपन पुट करते हैं फॉर्मूला में, तो अपने पास वैल्यू आती है, इस वैल्यू से आप इसको सोल्व कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस टेबल ड्रॉ ये डायग्राम, एक्स 0 वाई। क्लियर। और एक्स ऑन इनकम एंड वाई से ऑफ एमपीसी, एमपीसी या डेल सी या डेल वाई, डेल वाई। क्लियर। कंजप्शन फंक्शन start to 0 point and increasing at 45-degree linear. Clear. Second, consumption function start to up to 0 point. Okay, up to 0 point, that is consumption function. कंजप्शन फंक्शन कहां से, इसको अपन कहां से क्रिएट करते हैं, अकॉर्डिंग टू डेल सी से, डेल सी। और एमपीसी वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन कौन सी वैल्यू पुट करते हैं, अपन डेल सी अपॉन डेल वाई। ओके, तो सी जो फंक्शन है, जैसे जिस रेट से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज ऑफ इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज ऑफ इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज ऑफ इंक्रीजिंग रेट कंजप्शन फंक्शन। ये जो ट्राइंगल जो अपने पास बन रहा है, ये किसको डिनोट कर रहा है, चेंज इन इनकम 0 to 50। इनकम कितनी यहाँ पे चेंज हो रही है, 50, एंड कंजप्शन कितना चेंज हो रहा है, 25। ओके, ऐसे ही यहाँ से इनकम कितनी चेंज हो रही है, 100 से 200, एंड कंजप्शन कितना हो रहा है, 50 to 100 to 150। तो यहाँ पे इनकम चेंज हो रहा है 100 या 50। जो ट्राइंगल्स अपने पास जो बन रहे हैं कंजप्शन फंक्शन ऑन द कंजप्शन फंक्शन शो ऑफ ट्राइंगल्स दैट आर शो ऑफ एमपीसी। ओके, ये जो ट्राइंगल्स हैं ये किसकी वैल्यू को शो कर रहे हैं, ये एमपीसी को शो कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली अपने आप में जो ट्राइंगल्स हैं वो किसकी वैल्यू को शो करते हैं, यहाँ पे एमपीसी वैल्यू को शो करते हैं। ओके, दैट्स क्लियर। अगेन नेक्स्ट, properties features of MPC, properties features of MPC। number 1, value of MPC range between 0 and 1, 0 and 1। क्लियर। एमपीसी की वैल्यू है वो किस रेंज में होगी, ऑलवेज किस रेंज में अपन गेट करते हैं, 0 लेस देन एमपीसी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मिनिमम वैल्यू वो 0 से अधिक होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 भी हो सकती है एमपीसी की।
Second, however, is if entire additional income is spent, del C equals to del Y. जब अपन जितनी इनकम अपने पास होती है सारी इनकम किस पे क्या कंज्यूम कर लेते हैं, एक्सपेंडिचर कर लेते हैं, तो क्या हुआ इकोनॉमी में, डेल सी अपो इक्वल्स टू डेल वाई। यानी जितनी आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है उतने आपका कंजप्शन। सपोज कीजिएगा कि आपकी इनकम 100 से कितनी हो गई, 200 हो गई, और इधर आपका कंजप्शन कितना हो गया, 100 से 200 हो गया। तो डिफरेंस यहाँ पे कितना, 100 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 100 का। तो डेल सी अब इक्वल्स टू डेल वाई। यानी जितनी आपकी इंक्रीज इनकम होती है उतना आप उस इनकम क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। ओके, क्लियर। डेल वाई इम्प्लाइंग एमपीसी इक्वल्स टू 1। तो ऐसी सिचुएशंस में जब आपका कंजप्शन जितनी आपकी इनकम इंक्रीज हुई है उतना आपने क्या कर लिया, कंजप्शन इंक्रीज किया, आपका एक्सपेंडिचर कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है। तो ऐसी सिचुएशन में ऑलवेज क्या होगा, एमपीसी इक्वल्स टू 1। क्लियर। अगेन, however, if entire addition income is saved, then del C equals to 0। और यदि आपकी इंटायर इनकम, सपोज ये रही आपकी इनकम 100 से 200 और 200 से कितनी हो गई, 300 हो गई, और आपका एक्सपेंडिचर भी कितना ही था, सेम था, 200 था। आपने डेल सी को कितना इंक्रीज किया है, यहाँ पे 0 इंक्रीज किया है, और इनकम कितनी इंक्रीज हो गई, यहाँ पे डेल वाई कितना हो गया, 100 हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में यदि आपका इनकम इंक्रीज होने के बाद यदि आपका कंजप्शन इंक्रीज नहीं होता है, डेल सी इक्वल्स टू 0, देन एमपीसी वैल्यू इज ऑलवेज 0। क्लियर। तो आपके एमसी क्वेश्चंस आते हैं फाइनल एग्जाम्स में कि एमसी की मिनिमम वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू एमपीसी ऑफ इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये एस्पेक्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप ठीक से पढ़ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके बहुत सारे एग्जाम्स में आपके। ओके, तो सेकंड एस्पेक्ट है अपना, उसके फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो कंप्लीट है। अगेन एमपीसी, फोर्थ पॉइंट, एमपीसी ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज मोर देन एमपीसी। जो डेवलपिंग कंट्री होती हैं, जैसे अपना इंडिया है, डेवलपिंग कंट्री है, एमपीसी, तो इनकी जो एमपीसी होती है क्या होती है, मोर देन होती है। और जो जो डेवलप कंट्री होती हैं, इसमें डेवलप हो जाता है पूरा कंप्लीट रूप से, जैसे अमेरिका है, वहाँ पे एमपीसी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। एज डेवलपिंग कंट्री नीड टू स्पेंड ऑफ बेसिक नीड्स मोर देन द डेवलप्ड कंट्रीज, it is also said that MPC of poor is more than MPC of rich, as poor persons need to spend more than basic necessities। okay, rich and poors, टू वर्ड्स यहाँ पे अपने यूज किए हैं, अपने यहाँ हुए हैं अपने, पुअर्स एंड रिच। क्वेश्चन अपना यहाँ पे ये होता है कि जो एमपीसी वैल्यू होती है वो हाई ज्यादा किसकी होती है, और आपने अंडरस्टूड किया होगा इस चैप्टर से कि इनकम 100, 200, 300, 400, कंजप्शन 50, 75, 100, 150। ओके, इनकम की रेट इंक्रीजिंग रेट होती है, हाई होती है, उस कंजप्शन की इंक्रीजिंग रेट होती है, क्या होती है, लो होती है। ओके, तो यहाँ पे अपन शो करना है डेल सी अपॉन डेल वाई। क्वेश्चन अपना क्या है कि रिच पर्सन एंड पुअर पर्सन, किस कौन से पर्सन की जो एमपीसी वैल्यू होती है वो हाई होती है, तो ऑलवेज पुअर पर्सन एमपीसी इज हाई एंड रिच पर्सन एमपीसी इज लो कंपेयर टू पुअर पर्सन। क्योंकि पुअर पर्सन की इनकम होती है वो कम होती है, 500 रुपये, 1000 रुपये पर डे। तो जितना जितना अर्न करते हैं वो सारा क्या कर लेते हैं, एक्सपेंडिचर कर लेते हैं। तो जितनी ज़्यादा एक्सपेंडिचर कैपेसिटी होगी वहाँ पे एमपीसी वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। और जहाँ पे इनकम के कंपेयर टू कंजप्शन का रेशियो कम होता है वहाँ पे एमपीसी की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, कम होती है। ओके, तो ये आपके चैप्टर का प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन पार्ट कंप्लीट होता है। इसको आप अपनी बुक से इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाइएगा, और सभी स्टूडेंट्स हैं और टाइम टू टाइम अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।